K. Good morning, students. In my next video, in my earlier video, we had talked about integrated rate law equation, how to find out the order of the reaction, and that topic we have finished. Now let's come to the next topic. What are pseudo unimolecular reactions? If we have a certain reaction, suppose we say that rate law is given, rate is equal to K into A to the power 1 and B to the power 1. So this means order with respect to A is 1, order with respect to B is 1, but you know that the overall order is 2. But if any one of the reactants, that is A or B, if it is present in excess, then the rate of the reaction does not depend on the concentration of that particular reactant. So this, according to this rate law, the rate of the reaction appears to be a second order reaction, but it is actually and it is truly a first order reaction. So in those reactions which are not truly of first order, that means they appear to be a second order reaction because rate law is given by rate is equal to K into A to the power 1 B to the power 1. That means the overall order is 2. But in reality, any one reactant, usually the reactant has to be a solvent, say water. If it is present in very large excess, the rate of reaction does not depend on the concentration of this reactant, and this reaction, which appears to be a second order reaction but is actually a first order reaction, and this is known as pseudo unimolecular reactions. In my notes also I have given you two important reactions. The first is, if I have ethyl acetate and I hydrolyze it, it is a pseudo unimolecular reaction because water is present in very large excess and the rate of reaction does not depend on the concentration of water. If we write down its rate law, I can write down rate is equal to K into directly proportional to acid. This actually there should have been a water also here, but water I am removing. In reality, if I see, we can write down rate is equal to in K dash. I am not putting K here. K dash into acetate, ethyl acetate की concentration into water concentration. Now what I am saying is this water concentration is already constant. Rate is not depending on them. That means instead of putting water, I am putting a K double dash here. This K dash and K double dash, when multiply with each other, they give you a value K. So what are pseudo unimolecular reactions? Those reactions in which appear to be a second order reaction, but in reality they are first order reaction because any one reactant is present in very large excess, and the rate of the reaction actually does not depend on the concentration of this particular reactant which is present in excess. Based on this also we will have to do certain numericals. Next important topic is the activation energy. When a reaction occurs, two reactants, they collide with one another. Once they collide मतलब टकराना, जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में. अब क्या नेसेसरी कंडीशंस है? जो भी रिएक्टेंट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दे शुड हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ताकि उनका कोलिजन, ताकि उनका जो टकराना है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए. द मिनिमम एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए और वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. अगर मॉलिक्यूल्स के पास जब वो टकरा रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी है तो वो टकराने पे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, और सपोज़ टकराने पे उनकी एनर्जी कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो वो जितना मर्जी एक दूसरे से टकराते रहें वो प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होंगे. So what is threshold energy? The minimum energy which a molecule must possess so that they collide with one another and they get converted into product. Now an average and a molecule may not have energy equal to threshold energy. उसके पास एनर्जी है पर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है, तो हम उसे बाहर से अगर कुछ एनर्जी दे दें ताकि उसकी वैल्यू एनर्जी की अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, that is called activation energy, which is denoted by EA. The amount of energy which we must provide to the molecule from outside so that its average energy now reaches to the value of threshold energy. उनकी एनर्जी जो नहीं थी थ्रेशोल्ड के बराबर, आपके एनर्जी देने पे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, जितनी एनर्जी हम उस मॉलिक्यूल को दें
ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए. दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. I hope this part is clear of activation energy. Now, another most important factor is when the molecules collide with one another, they first form an activated complex. ये कहा जाता है कि जो activated complex है, जब एक दूसरे से कंपेयर है, वो एक्चुअली एक एनर्जी बैरियर है जिसको रिएक्टेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर वो क्रॉस कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, एक बहुत ऊंचाई पे हिल्स पे एक कार को जाना है. अब कार के पास इतनी एनर्जी है, इतना पेट्रोल है, इतनी ताकत है कि वो उस एनर्जी बैरियर को, वो हिल को क्रॉस कर लेता है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा. लेकिन अगर वो उस हिल को क्रॉस नहीं कर पाता है तो वो नीचे ही रह जाएगा. सेम इज़ द केस हियर. जब दो रिएक्टेंट्स ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो वो पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. सबसे पहले वो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म एन activated complex, and this activated, you can see here, they form an activated complex. This activated complex has high energy. This energy has to be crossed by the reactant molecules in order that they change into product. So whatever energy we have to give to this molecule, if they do not have energy equal to threshold energy, that is called activation energy. तो जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के अगर बराबर है तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, अगर बराबर नहीं है तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे. अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, वेरी क्लियरली यू कैन सी दिस इज द एक्टिवेशन energy. This is the activated complex, this is the energy barrier which this reactant molecules, this is reactant and these are the products, and they have to cross this energy barrier in order to change into products. So if they have energy greater than threshold energy or equal to energy, they can cross it, and if they do not have, they will not be able to process. So एक चीज़ हमें समझ में आई कि एवरेज एनर्जी में अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐड कर दें, एवरेज एनर्जी में हम एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर दें तो किसके बराबर हो जाएगी? या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव टू सी द टेम्परेचर डिपेंडेंस. ये देखा गया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 10 डिग्री, टेम्परेचर सपोज 298 है और मैंने 10 डिग्री उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मैंने उसे बाहर से समझो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी दे दी. जिस भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो फास्ट रिएक्शन होगा, जिसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है मतलब उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें बाहर से देने की ज़रूरत है, इसका मतलब वो कैसा रिएक्शन होगा? वो एक स्लो रिएक्शन होगा. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को करीब 10 डिग्री इंक्रीज़ करते हो तो ऐसा देखा गया है कि रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाता है. अब टेम्परेचर 298 है और अब टेम्परेचर मैंने 298 से 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो गया. अब क्यों डबल हो गया? क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, दे एक्वायर सर्टन एक्टिवेशन एनर्जी, दे स्टार्ट मूविंग विद ग्रेटर वाइब्रेशंस, देयर कोलिजन्स बिकम मोर एंड मोर इफेक्टिव कोलिजन. एन इफेक्टिव कोलिजन इज वन in which the molecules collide with one another and they change into products. So टेम्परेचर बढ़ाने पे यूजुअली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और हम इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है. रेट कांस्टेंट K है और आपका टेम्परेचर अगर 298 है और आपने 298 से 10 डिग्री बढ़ा दिया मतलब टेम्परेचर 308 बढ़ दिया तो कितने टाइम्स हो जाएगा रिएक्शन रेट? 2 टाइम्स. द रिएक्शन रेट विल बी 2 टाइम्स बिकॉज जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं. अब ये बहुत क्लियर एक कट आपको ग्राफ दिख रहा है. इसमें मैंने एक तरफ ले लिया है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी तरफ ले लिया है फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स जिनके कोलिजन इफेक्टिव हैं. जब हमने लोअर टेम्परेचर लिया तो अब जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है उतने मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कोलिजन इफेक्टिव है. लेकिन जब मैंने टेम्परेचर को T से T+10 डिग्री कर दिया तो आप देखिए ये ग्राफ बड़ा हो गया. पहले ये जो मैंने केवल शेडेड पोर्शन बताया था उतने मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से के बराबर थी और जिनके कोलिजन्स इफेक्टिव थे. पर जैसे ही मैंने टेम्परेचर को T+10 डिग्री कर दिया तो हमारा अब वो ग्राफ का पोर्शन क्या है? अब ये टोटल ये वाला है EFCD जो शेडेड है प्लस वो वाला पार्ट जो शेडेड नहीं है. इनफैक्ट हम उसको दूसरे ढंग से शेड कर सकते हैं. इसमें मैंने
हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं, इसको हम लोग साथ में ऐसी लाइनें बना दी। तो ये वाला पूरा पोर्शन जो मैंने अभी आपको दिया है, दैट इज़ ये पूरा पोर्शन हो गया जो मैंने डार्क से किया है। पहले थोड़ा पोर्शन था जिसमें वो मॉलिक्यूल्स थे जिनका कोलिजन इफेक्टिव था। आपके टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से क्या हो गया, ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स हो गई और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ गई, जिसके कारण ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज हो गया। ओके, दिस वाज द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअली एक इक्वेशन है जिसमें हम रेट कांस्टेंट k को रिलेट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से। k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। A is a constant which is known as frequency factor, or it is also known as pre-exponential factor. EA is the activation energy, R is the gas constant and T is the temperature in kelvins. अब हमने एक्टिवेशन एनर्जी का इसके आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन किया हुआ है। इस इक्वेशन को हमने लॉग ले लिया। फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। K इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी हमने ले लिया। इट विल बिकम log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए टू द पावर x का log क्या होता है, x log a। तो ये हो गया माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे ले रहे हैं तो लोअर टेम्परेचर वाले को मैंने k1 ले लिया, तो हम लिखेंगे log k1 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। ई ए कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने ई ए वन या ई ए टू नहीं लिया है। सिमिलरली अगर हायर टेम्परेचर है तो उसको मैंने क्या ले लिया, log k2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन अपॉन टी log ई ए अपॉन आर log ऑफ ई ए अपॉन आर टी टू, दैट इज log a माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। दो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, T1 इज़ द लोअर टेम्परेचर, T2 इज़ द हायर टेम्परेचर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे एक दूसरे से। इस इक्वेशन को 3, इक्वेशन को 2 से अगर हमने माइनस कर दिया तो log a तो कॉमन है, कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, माइनस हटा दिया एंड दिस। इसके बाद हमने क्या किया, T1 और T2 का एलसीएम ले लिया। योर फाइनल इक्वेशन बिकम्स, उसके बाद 2.303 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज किया, डिवाइड किया हमने 2.303 से, और योर फाइनल इक्वेशन बिकम्स log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब इस इक्वेशन को भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ला सकते हैं। अगर हम उस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बाद में ले आएँ तो इसका भी एक ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में। और कौन से न्यूमेरिकल्स होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे। टेम्परेचर T1 दिया होगा, T2 दिया होगा और आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होगा। रेट कांस्टेंट K1 दिया होगा एट लोअर टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट K2 दिया होगा एट हायर टेम्परेचर। जनरली इसमें क्वेश्चन आता है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 298 डिग्रीज टू 310 डिग्रीज फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्वाड्रपल्स का मतलब 4 गुना, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू हो गई 4, याद रखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, और हम वैल्यू पुट अप करेंगे, इट बिकम्स क्वाड्रपल्स मैंने कहा, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू हो जाएगा 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा हो जाएगा log 4। log 4 इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है 2.303 को जब हम R की वैल्यू क्या लगाएंगे 8.314। जब भी हम R को दैट इज़ 8.314 को 2.303, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिए न्यूमेरिकल्स में आपको ज़रूरत नहीं है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए। जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी 19.16। इसको याद कर डालो ताकि एग्ज़ाम्स में तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। याद रखिए जब आप 2.303 को न्यूमेरिकल्स में R की वैल्यू क्या होगी 8.314 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू रट डालिए, ये वैल्यू हमेशा आएगी 19.16। न्यूमेरिकल में पहले ये लगा लो, वैल्यू पुट कर लो, 2.303 भी लगा लो, 8.314 भी लगा लो, और बाद में इनको मल्टीप्लाई किए बिना सीधे लिख दो 19.16।
T1 आपको मालूम है लोअर टेम्परेचर होगा, T2 आराम से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। नाउ आफ्टर deriving this, the next important effect is what is the effect of a catalyst on the rate of reaction। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ये कैटलिस्ट एक वो स्पीशीज़ होती है, वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन वो खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। हमें अब ये जानना है कि हमारे रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करता है, कैसा क्या करता है कैटलिस्ट कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्टर हो जाता है। जब हम किसी कैटलिस्ट को रिएक्ट करते हैं तो वो पहले तो वो कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं और मेरा सी अगर कैटलिस्ट है तो ये ए बी और सी का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है और ये देखा गया है कि कैटलिस्ट कुछ ऐसा नया मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। सपोज़ कोई एक रिएक्शन है, मैं उसे बिना कैटलिस्ट के करती हूँ तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। फिर वही रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन मैं उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर लेती हूँ तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट उसी रिएक्शन का एक ऐसा नया मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। सो व्हाट इज अ कैटलिस्ट, क्वेश्चन आएगा हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू, अ कैटलिस्ट adopts a new mechanism of the same reaction which occurs in the absence of catalyst which has lower activation energy. Lower the activation energy, faster will be the reaction. इसको भी हमने एक्सप्लेन किया है by means of a very clear graph. अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो डार्क लाइन तुम्हें कर्व की दिख रही है वो रिएक्शन है जो हमने किया है पर कैटलिस्ट के एब्सेंस में किया है। तो EA जो आपको दिख रहा है EA1 इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी जो ज़्यादा दिख रही है। फिर उसके बाद तुम लोगों को एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये किसके प्रेजेंस में, ये वही सेम रिएक्शन को हमने कैरी आउट किया पर अब की बार उसे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर दिया। तो जब हमने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कम किया तो आपने क्या देखा, पहले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले से कम हो गई। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सो कैटलिस्ट increases the rate of reaction without itself participating in the reaction. It tries to adopt a new mechanism of the same reaction which occurs with lower activation energy, and hence the catalyst is able to increase the rate of reaction. Now we come to the last topic. What are the various factors? हम एक बार फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, किन किन फैक्टर्स पर रेट डिपेंड करता है। हम उसका थोड़ा सा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला एक टर्म मैंने लिखा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने डिनोट किया है ZAB से। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम जो हो रहे हैं उनको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे हम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ZAB, A और B क्या है, A एक रिएक्टेंट है और B दूसरा रिएक्टेंट है। ये पहला फैक्टर है जिस पे रेट डिपेंड करता है। रेट एक चीज़ और पे डिपेंड करता है और वो है कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, और उसको हमने डिनोट किया है F से। F इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू ZAB इंटू F। F एक्चुअली क्या है, F इज़ e to the power minus EA upon RT। तो हमने फाइनली लिख दिया रेट ऑफ द रिएक्शन इज ZAB विच इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इंटू F। F क्या है, F इज e to the power minus EA upon RT। F is number of molecules which have energy, this is fraction of molecules which have energy greater than threshold energy, और जिनके collisions effective collisions होंगे। ये तो पहला फैक्टर था जिस पे हमारा रेट डिपेंड करता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZAB। ZAB is number of collisions per second per unit volume, and number 2 is F। F is fraction of the molecules which possess energy greater than threshold energy। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओरिएंटेशन।
जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो उनका कोलिजन बिल्कुल इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। अगर हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा तो चाहे उनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी, फिर भी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक इसका मैंने बहुत परफेक्ट एग्जांपल दिया है, जो कि हम जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड बुक का पहला चैप्टर, दैट इज़ हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, वहाँ पर हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। बड़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के उसकी जगह ले लेता है। अब आपको न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 11th में हमने पढ़ा है। ऐसी कोई स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ऐसी कोई स्पीशीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स में, पॉजिटिवली चार्ज है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स का, तो आप यहाँ देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है। मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड और मैंने उसको रिएक्ट कर दिया है हाइड्रोक्सिल आयंस, मतलब हमने CH3Br को KOH से रिएक्ट किया है, एक्वस KOH से रिएक्ट किया है। तो जब हम KOH लेंगे तो OH आयंस क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे। हो क्या रहा है, ब्रोमाइड आयंस हट जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं और उनकी जगह OH ले रहा है। अब मैंने इसका मैकेनिज्म देखा है। देखिए, अगर OH उसी जगह से अप्रोच करता है, ये SN1 SN2 मैकेनिज्म है, हम पढ़ेंगे जब हम उस चैप्टर तक पहुंचेंगे। तो जब अगर OH उसी जगह से अप्रोच करता है जहां से ब्रोमीन को लीव करना है, ब्रोमीन इज द लीविंग ग्रुप, OH इज द एडिंग ग्रुप या इनकमिंग ग्रुप। तो अगर OH उसी डायरेक्शन से अप्रोच करता है जहाँ पे OH, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, अगर OH उसी डायरेक्शन से अप्रोच करता है जहाँ से Br को निकलना है, तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा और रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। लेकिन अगर OH दूसरे डायरेक्शन से अप्रोच करता है, ये यहाँ ब्रोमीन है, इसको हटना है, यहाँ OH है, इसको आना है, तो क्या होगा, OH अगर दूसरे डायरेक्शन से अप्रोच करता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, कोलिजन इफेक्टिव होगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जिस डायरेक्शन में Br लगा था ओरिजिनल रिएक्टेंट में, OH आके उसी प्लेस पे नहीं लगेगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिएक्शन से पहले कॉन्फ़िगरेशन कुछ और था, लेकिन क्योंकि OH ने ऑपोजिट डायरेक्शन से भी अप्रोच किया मॉलिक्यूल को, तो OH उसी प्लेस पे आके नहीं जुड़ेगा जहाँ Br पहले से जुड़ा था। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर OH उसी डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, तब हम कहेंगे दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन अगर OH ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करेगा, Br स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी और तब रिएक्शन प्रॉपर होगा। तो दो इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिन पे रेट डिपेंड करेगा इज ZAB, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 इज F, that is number of molecules which have got energy greater than threshold energy, और तीसरा important factor is the orientation factor. Now this finishes the whole chapter, theoretical part of your chapter chemical kinetics. इस chapter में अब सिर्फ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स बचे हैं जिनको हम मंडे से करना शुरू करेंगे। एक तरह के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे, 2-3 सॉल्व किए थे, 4-5 दिए थे, कल मैंने उनका सॉल्व करके उनको डाल दिया है। अपने आंसर्स चेक करो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। और मंडे को हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहले मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी, 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व करके उनका वीडियो बनाऊंगी, एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू बी डन। ओके, बाय बाय। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग। अभी मैं कुछ दिन थोड़ा अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो मुझे इंडिविजुअली बता सकता है। एक चीज़ और बताएं, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। आई डू नॉट माइंड एट ऑल, एनी टाइम। मैं अगर बिज़ी होंगी तो मैं आपको उस समय मैसेज कर दूँगी कि बेटा अभी थोड़ी देर बाद फ़ोन करना। लेकिन आप अपने डाउट्स को अभी से क्लियर कर लीजिए, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई दिक्कत आ रही है, मैडम ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं उससे नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर लो अपने पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप पे। ओके, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग।
Study well and stay safe.